related to manufacturing of product. Yes or no? Yes, sir. So we call this as cost sheet. What do we call it? Cost. Cost sheet. Yes or Excuse no? me, sir. आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन करा रहे हो क्या? No, I'm just putting yes or no. How the cost sheet starts. Before how the cost sheet starts, when the cost sheet is prepared, that is most important question. Yes. Like you might have understand, you might have observed, you might have seen that in the finance account, the final account is prepared at the end of the year. Yes or no? Yes. So in the cost account, when to prepare the cost sheet, we can prepare the cost sheet anytime. It could be for day ended, it could be for week ended, it could be for month ended, it could be for quarter Quarterly ended, ended. it could be for half yearly ended, it could be for Yeah. yearly ended. Why it is so? Because cost sheet depends on the order you receive from the client, from the customer. So it's not that the order you are going to receive only at the end of the accounting year, because order means sales order you are receiving, and sales is the continuous process. Yes or no? Yes. So as and when customer feels the customer need, they would place the order to your company, and when they would place the order to your company, then they require the cost of the product. Yes or no? And when the client require cost of the product, you have to provide them detailed cost of the product. Yes or no? Yes. And you have to prepare the cost sheet. So cost sheet can be prepared for daily, weekly, monthly, monthly, quarterly, quarterly, half yearly, and regular. half yearly, and yearly. Yes or no? Yes. Here, why two lines are there? In the first line, we write quantity manufactured. What do we write? Quantity Quantity. manufactured. In the second line, we write quantity sold. Yes or no? How do we get this two? So for getting this two, we prepare a working note wherein we find out this two. It starts with opening stock of finished goods. For example, opening stock of finished goods is 1000. It is unit, not rupees. Okay. In this, we make plus quantity manufactured. For example, quantity manufactured is 11,000. Okay. So we get total quantity. So what is the total quantity available, beta? 12,000. Yes or no? Yes. Now out of this, we less closing stock. What beta? We less closing stock. The closing stock is, for example, 2,000. 2,000 is the unit that company could not make the sales. Company could not sell it. Yes or no? Yes. So, how many quantity company sold? So, quantity sold is 12 minus 2, 10,000 units. Yes or no? Yes. So, these two information is important. First, quantity manufactured, and second is quantity sold. Quantity manufactured and quantity sold. We will place here. What is the quantity manufactured, beta? It is 11,000. Yes or no? What is the quantity sold? 10,000. और पास आ जाओ. Yes or no? Yes. ये हो गया बेटा वर्किंग. 3 columns are there. कितना? 3. Working, then total cost, then cost per unit. Yes or no? Yes. You also have to provide the total cost. You also have to provide the per unit ka cost. Like the company's order is for example, 1 lakh Rosgullas.
So what would be the total cost for 1 lakh Rasgulla? That also the company need. And what would be the cost per Rasgulla? That also the company need. According for their decision taking process. जितना डिटेल कॉस्ट शीट रहेगा उतना डिसीजन मेकिंग इजी होगा उनके लिए. यस और नो? ठीक है. अच्छा, तो कॉस्ट शीट स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर. फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. यस और नो? इसमें क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? पहला डायरेक्ट मटेरियल. यस और नो? मानो कि कंपनी ने रसगुल्ला बनाने के लिए 1 लाख लीटर दूध परचेज किया, बट यूज सिर्फ 90,000 लीटर किया. 10,000 लीटर यूज ही नहीं हो पाया 31 मार्च तक. तो हम लोग सिर्फ 90,000 लीटर का कॉस्ट कंसीडर करेंगे या पूरा 1 लाख लीटर का कॉस्ट कंसीडर करेंगे? पूरा 90,000 का. कस्टमर पूछेगा नहीं आपसे कि आप 1 लाख परचेज कर रहे हो, 90,000 लीटर में बन रहा है, तो आप मुझको 1 लाख का कॉस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? तो डिसीजन चेंज कर देगा. ये सो ना, आपसे नहीं परचेज करेगा और लॉजिक भी नहीं बनता ना. तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के अंदर फाइंड आउट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम. क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम. जितना यूज हुआ उसको बोलते हैं कंज्यूम. क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूम. तो सबसे पहले क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्या होगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. मान लो कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल. ओके, इसमें प्लस क्या करेंगे? फिर परचेज भी करेंगे पिछले दिन का. फिर आज भी परचेज करना पड़ेगा क्योंकि डेली तो बहुत है. मान लो कि हमने 1 लाख का क्या किया बेटा? परचेज कर लो. परचेज होगा तो कुछ ना कुछ परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होगा. परचेज रिलेटेड एक्सपेंस मान लो 15,000. सॉरी. अब पूरा का पूरा यूज हो जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं. इसमें से क्या करेंगे बेटा? हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है कितना हो गया? 125. 3,000 है. कितना बेटा? 3,000. तो मेरे को बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा फिर? 1,10,000, 1,10,000, 15, 1,25,000 में से 3 गया तो कितना हो गया बेटा? 1,22,000. यस और नो? ये हो गया रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट. क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट. यस और नो? अब ये हमको कैसे, अब ये पता चला टोटल कॉस्ट. अब कॉस्ट पर यूनिट भी तो पता चलना चाहिए. यस हो ना? तो अगर 11,000 टोट के लिए इतना हुआ तो 1 यूनिट के लिए कितना हुआ? तो क्या करेंगे? इसको 11,000 से डिवाइड कर देंगे. यस और नो? तो 11,000 से 1,22,000 को डिवाइड करो जरा. सीपीयू कैसे निकालते हैं? 1,22,000 डिवाइडेड बाई 11. इसी को और क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट वेजेस. और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग. ये और क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्टिव वेजेस. क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वेजेस. ये सुनो, मान लो प्रोडक्टिव वेजेस है 22,000. कितना बेटा? 22,000. अब डायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा थर्ड वाला. ये सुनो, इसके बाद आएगा बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, मान लो वो 11,000. कितना? 11,000. ठीक है, अब तीनों का कॉस्ट ऐड कर लो बेटा. रॉ मटेरियल ये 1,21,000, 1,22,000 प्लस. अच्छा ये 22 है तो ये कितना हो गया बेटा? 2 हो गया. 11,000 से डिवाइड करेंगे. ये 11,000 है तो कितना हो जाएगा? 1. ये सुनो कैसे ऐड करते हैं? 1,54. डिवाइड किया. ये कितना? 1,54. 1,54 हो रहा है. 1,54,000. 54. 21 ना. ये हो गया 40 हो गया. 40 43 43 50 54. 1,54,000. यस और नो? यस. डिवाइड बाई 11,000 कितना हो गया? 54,000.
11,000 डिवाइडेड बाय 11,000 14। 11 2 13 1 14 हाँ बराबर हो गया। यस ये हमने क्या किया बेटा, हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का टोटल ये सुनो, तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये मेन कॉस्ट होता है किसी प्रोडक्ट का, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम कॉस्ट। यस और नो, यस प्राइम कॉस्ट मिल गई अपने को, तो डायरेक्ट कॉस्ट खत्म। यस और नो। अब क्या आएगा बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या आएगा बेटा, इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन में दोनों सॉल्व करना है सर, तभी 20 मार्क्स मिलेगा। अब वो 20 मार्क्स में से वो लोग कहीं कहीं कट भी कर सकते हैं ना, तो वो भी आप बताना कहाँ कहाँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट। अरे ऐसा हाईलाइट नहीं करेंगे फिर भी कट होता है। हाँ ओवरहेड्स, ठीक है। यस। अभी तो इट स्टार्ट्स, इसमें भी कितने कॉस्ट होते हैं बेटा, 3 कॉस्ट। 3। पहला क्या होता है, फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा क्या होता है, ऑफिस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस, फैक्ट्री ना पहिला, ओ सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड्स। यस और नो। यस। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड लाइक जैसे light वेजेस bill। हो गया या फैक्ट्री रेंट हो गया, बिल भी तो हो गया। ठीक है। मान लो कि वेजेस है 22,000, फैक्ट्री रेंट है 33,000, प्लस और इधर लेना चाहिए था 22,000 एंड 33,000। चलो कितना हो गया था, 22 एंड 30, 50 55। 55,000, 55,000 ये टोटल हो गया। 55,000 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो गया बेटा, 55,000 5। ये सुनो 5। यस। हाँ, अब इसको और इसको ऐड कर दो, कितना हो गया, 1,54,000 प्लस 50, 2 लाख 9,000। 1 लाख, 2 लाख 2,09,000 डिवाइडेड बाय 11। 2,09,000 डिवाइडेड बाय 11 19। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ग्रॉस रॉ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रॉस फैक्ट्री। या सोनो, इसमें ऐड क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। मतलब ओपनिंग स्टॉक है 11,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 22,000। ओपनिंग क्लोजिंग का पर यूनिट कभी भी लेने का नहीं, नहीं। ठीक है। चलो अब 11,000 ऐड करो, 22,000 माइनस, किधर ऐड करूँ, 2,09,000 है। 2,09,000 में हो गए 2,20,000। 2,20,000 में से 22,000 निकाला, 1,98,000। 1,98,000। ये सुनो, यस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को और क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क्स। तो इसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, वर्क्स कॉस्ट। डिड यू गेट दिस, यस पक्का। यस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स बोलना जरूरी है। यस, उसका सरनेम, ठीक है। चलो तो ऑफिस रिलेटेड क्या होगा बेटा, जैसे पेंसिल, पेन, ऑफिस, ऑफिस के रेंट, चेयर। फिर स्टेशनरी, यस। और फिर सैलरीज भी तो आ गए एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑफिस सैलरी, ठीक है। चलो मान लो कि ये 11,000 है, ये 33,000 है, और ये 55,000 है। कितना हो गया, 8,000 कितना, 80,000, 89। 99,000। हाँ कितना, हाँ 99। राइट। ये सोनो। यस सर। चलो तो ये आप पर यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, 9। अच्छा इसका पर यूनिट फाइंड आउट नहीं किया, 1,98,000 डिवाइडेड बाई 11,000।
1,98,000 डिवाइडेड बाय 11,000 18 ये बटे 80। ये सुनो, अब ये 1,98,000 प्लस 99 ऐड करो। 98 प्लस 99 2,97,000। 2,97,000 अब इसको 11 से डिवाइड करो। डिवाइडेड बाय 27। ये सुनो, व्हाट वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, मान लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 11,000, जिसको ये नहीं लेने का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 22,000। अब 2,98,000 में ये प्लस सॉरी, करना है। हाँ ये प्लस करना है, वही तो माइनस को नीचे वाला खाली माइनस करना है। 97 प्लस 11,000 माइनस होता है 3,08,000 माइनस 22,000 माइनस 22,000 2,86,000 तो आगे बेटा 2,86,000। 86,000 ये सुनो, डिवाइड करो 11,000 से। अच्छा, इसको 11,000 से नहीं डिवाइड करेगा, इसको करने का ना। इसको बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या बनेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से चेंज होगा। इसको क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। तो 10,000 से डिवाइड करो। 28.6 नहीं, 2,86,000 डिवाइडेड बाई 10,000, हाँ वही किया। 28.6। ओके, है ना? अब इसमें क्या करेंगे बेटा? ऐड क्या करेंगे बेटा? ऐड, इधर ऐड लिखने का, इधर भी ऐड। अब ऐड करेंगे बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो उसमें आएगा लाइक एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, है ना? मान लो कि ये 22,000 है, ये 11,000 है। कितना हो गया बेटा? 22 प्लस 11 33। 33,000। ये सुनो, यस इसको डिवाइड करो भी 10 से, 10,000 से, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3.3। ये सुनो, 286 प्लस 33 कर दो, कितना हो गया? 33 डिवाइडेड बाय 10,000 3.3। हाँ अब इसको डिवाइड, अब इसको प्लस करो 33 प्लस 2,86। 3,19,000 3,19,000, 3,19,000। ये सुनो, डिवाइडेड बाय 10,000 31.9। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। ये सुनो, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड क्या करेंगे बेटा? प्लस प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे बेटा? प्रॉफिट। मान लो प्रॉफिट है इसमें 11,000 का। कितना प्रॉफिट है बेटा? 11,000। कैसे पता चला 11,000? ऐसे में अज्यूम फिगर है। अच्छा अच्छा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.1। ठीक है, क्या मिल जाएगा फिर अपने को? सेल्स। सेल्स कितना होगा बेटा? 3 लाख। ये कितना? 30,000। और पर यूनिट सेल्स कितना हो गया? 31 32 33 हो गया। 33.7। फाइनल आंसर